Welcome to chapter number 8, Quadrilaterals. Quadrilaterals is a chapter which is 100% based on lesson number 6 and lesson number 7. तो प्लीज़ 6 और 7 अगर नहीं आता तो उसको रिवाइज करो, वरना चैप्टर 8 बहुत डिफिकल्ट लगेगा. Another thing, chapter 8 has many theorems. Theorems are nothing but स्मॉल सम्स. तो इनको थियरम्स को तुम छोटे छोटे सम्स गिन सकते हो, और थियरम जनरली बाय हार्ट करने की होती है. फिर भी मैं सारे थियरम समझाने वाला हूँ. देर आर टोटल 10 theorems, out of which 8 theorems and 6 examples. 14 sums we will do today. Then we will do exercise 8.1, 12 sums in second lecture. Then we'll do the last two remaining theorems, 2 examples, and 8.2 के 7 sums. 11. So this is the sequence: 14 things, 12 things and 11 things. And advance में बता दूँ, your homework is going to be as follows. First time, you are going to write with the lecture. And when you write, you have to draw also. Geometry without drawing, it is useless. And second, you have to write second time by looking at your notes or memory, or again seeing the video. I will reject the homework if you have written same sum 2 times. तो 1 के बाद 1, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, ये नहीं चलेगा. You have to write all the sums one time and then again second time. So best of luck with this chapter. There is almost no sum which has any numbers in it. Full chapter is prove that chapter. So let us do 8 theorems and 6 examples today. The first thing, angle sum property of quadrilateral means angle A plus B plus C plus D is 360. Prove this. How do you prove? Keep writing with me, it's a small sum. Divide the quadrilateral into 2 triangles. Triangle ADC. तो ट्राइंगल ADC में DAC प्लस फुल एंगल D प्लस DCA is 180. Triangle DAC. The second triangle is ABC. This angle is CAB plus full angle B plus BCA is also 180. Add both the equations. So when you add DAC plus CAB, वो एंगल ए बन जाता है. ये देखो, DAC प्लस CAB इज फुल एंगल ए प्लस एंगल बी फुल प्लस DCA BCA मतलब फुल एंगल C प्लस फुल एंगल D is equal to 180 plus 180
hence proved. और तुम्हें प्रॉपर मेथड के साथ लिखना है. ये रहा टेक्सचुअल वर्जन. So you have to do the full method and write it very neatly that why the sum of the angles of the quadrilateral is 360 degree. Prove that sum of all angles is 360. Types of quadrilaterals: trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, square and kite. All this has been done in 8th standard, but I am going to highlight the diagonals. ट्रपीजियम के जो डायगनल्स होते हैं उसके बारे में कोई रूल नहीं है. देर इज नो रूल. बट इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फर्स्ट थिंग, एक डायगनल छोटा और दूसरा बड़ा, अनइक्वल, और दूसरा बाइसेक्ट, मतलब दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये दो टुकड़े सेम है और ये दो टुकड़े भी सेम है डायगनल के. बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. मीन्स द फर्स्ट डायगनल is equal to the second diagonal and they bisect each other. मतलब ये दो टुकड़े सेम, ये दो टुकड़े सेम, चारों टुकड़े सेम. ये कॉपी करके रख लो सेफली, बहुत काम आएगा. rhombus has unequal diagonals but they bisect at 90. unequal मतलब एक डायगोनल छोटा है रेड वाला तो ब्लैक वाला बड़ा है. बट दे बाइसेक्ट मीन्स ये टुकड़े दोनों सेम, ये टुकड़े सेम, एंड दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री विच डज नॉट हैपन इन प्रीवियस टू फिगर्स. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बाइसेक्ट तो होता है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होता जो रोम्बस में पॉसिबल है. स्क्वायर diagonals are equal. So first diagonal is the red diagonal, second is also exactly same length red diagonal. They bisect each other, मतलब ये सारे टुकड़े सेम है, and at 90 degree, जैसे रोम्बस में था वैसे स्क्वायर में है, they cut each other at 90. And last is kite, unequal. So एक diagonal छोटा, दूसरा diagonal बड़ा. वन इज बाइसेक्टेड. जो छोटा डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट हो रहा है, बड़ा वाला बाइसेक्ट नहीं हो रहा है. एंड इट बाइसेक्ट्स एट 90. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द टू डायगोनल्स. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. क्विज जब भी होगी या एग्जाम में मैं पूछ सकता हूं फिल इन द ब्लैंक्स में, नेम द क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90. Equal and bisect at 90 ये है, square is the answer. So remember the properties of quadrilateral. Square is a rectangle. Square is also a rhombus. Parallelogram is a trapezium. Kite is not a parallelogram. Trapezium is not a parallelogram. Rectangle or rhombus is not square. तो ये सब क्या है अंदर अंदर. टू लर्न दिस प्रॉपरली, दिस चार्ट यू हैव टू बाय हार्ट. दैट क्वाड्रिलैटरल्स आर ऑफ हाउ मेनी मेन टाइप्स. अगर किसी स्ट्रक्चर में एक ही पैर पैरेलल है, ऊपर और नीचे पैरेलल, लेफ्ट साइड और राइट साइड पैरेलल नहीं है, तो वो ट्रपीजियम. बट इफ देर इज नो साइड्स पैरेलल, दीज टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, दीज टू आर नॉट पैरेलल, एक भी पैरेलल नहीं है, तो वो काइट है. और अगर दोनों पैरेलल है तो पैरेललोग्राम. सो 1 and 2 पैरेलल, 3 and 4 पैरेलल.
So one pair of parallel sides, no pair of parallel sides, and parallelogram have two pair of parallel sides. और पैरेललोग्राम के अंदर आता है रोम्बस, जिसमें सारी साइड सेम होती है. तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम आर लॉन्ग, लेफ्ट एंड राइट आर शॉर्ट, बट रोम्बस में all the sides are of equal length and parallel also, and diagonals are unequal. और दूसरी तरफ पैरेललोग्राम को सीधा कर दो तो रेक्टेंगल बन जाता है. all sides are not same but diagonals are same. here diagonals are not same. और रोम्बस को सीधा कर दो या रेक्टेंगल को स्क्वेरिश बना दो तो बेसिकली यू गेट अ स्क्वायर. एंड स्क्वायर हैज ऑल साइड सेम, बोथ द डायगोनल्स सेम, diagonals bisect each other at 90. So this chart has to be by hearted, from which I'll tell you how to remember the sentences. So the way you will by heart is every dash is a dash. तो नीचे ऊपर every square is a rhombus. True. Every square is a rhombus. Every square is a rectangle. Every square is a parallelogram. Every square is a quadrilateral. All four statements are true. Every rhombus is a parallelogram. True. Every rectangle is a parallelogram. True. Every parallelogram is quadrilateral. True. In short, every dash is dash में ऊपर जाना allowed है, बट नीचे आना अलाउड नहीं है. मीनिंग एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. फॉल्स. दुनिया का हर रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर है? नहीं. एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर. रॉन्ग. रोम्बस ऐसे टेढ़े भी होते हैं. सो ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर, बट ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस. दिस इज हाउ यू वुड बाय हार्ट द चार्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट दी सेंटेंसेस. So that brings us to the first theorem. सारे theorems parallelogram पे है तो easy है. Diagonal of parallelogram divides into two congruent triangles. ये प्रूव करना कि diagonal AC divides parallelogram in two congruent triangles. Given parallelogram ABCD, diagonal AC. To prove triangle ABC is congruent to triangle ADC, मतलब AC की वजह से जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूव करना है. और प्रूफ के लिए वी विल डायरेक्टली कंपेयर द टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल ए, ऊपर वाला पहले लेते हैं, ADC एंड ट्राइंगल ABC. DC पैरेलल टू AB. क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में टॉप एंड बॉटम साइड्स आर पैरेलल. DC parallel to AB, comma AC transversal. Therefore, angle DCA is equal to CAB. देखो फिगर Z बन रहा है तो दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल DCA इज इक्वल टू CAB. दो ब्लू ट्राइंगल सेम. ये हो गया 1. सेकेंड, AD पैरेलल टू BC.
AC ट्रांसवर्सल। तो पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब दिस एंड दिस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, Z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। Therefore angle DAC is equal to angle ACB. That's 2. और यहाँ पे रीजन लिखना alternate angles. And the last point of comparison is AC common arm. Number 3. तो क्या हुआ? What is the status? The status looks something like this. Triangle ADC, triangle ABC, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये रेड एंगल इज इक्वल टू ये रेड एंगल। सेम रीजंस, दिस ब्लू एंगल इज इक्वल टू दिस ब्लू एंगल। एंड थर्ड, कॉमन आर्म AC। तो ये दिख रहा है ASA, ये तुम्हारा क्लू था। थियरम 8.1, एंगल साइड एंगल के हिसाब से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिनिश राइटिंग द थियरम प्रॉपर्ली और फिर आगे बढ़ना। और तुम्हें क्या लिखना है वो ट्राइंगल चैप्टर में सिखाया था। देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, SAS थियरम। हेंस प्रूव्ड कि पैरेललोग्राम को डायगोनल जब कट करता है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस इज टेक्सचुअल प्रूफ। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, या तो मेरा वर्जन लिखो या टेक्स्ट बुक का वर्जन, दोनों सेम ही है। सेकेंड थियरम, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, टू प्रूव ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब AB इज इक्वल टू DC और BC इज इक्वल टू DA प्रूव करना है। प्रूफ, अगेन टेक आउट द टू ट्राइंगल्स which are created because of the diagonal and compare them same to same. This is parallel to this, therefore alternate angles, red is equal to red, पहला। फिर ये blue is equal to ये blue, lines are parallel and transversal, and common arm AC, तो ये ASA थियरम के हिसाब से ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम निकले। ये पूरा थियरम 8.1 है। सो फुल थियरम 8.1 यू हैव टू राइट डाउन, एंड आफ्टर राइटिंग इट, आफ्टर प्रूविंग देयरफॉर ट्राइंगल ADC is congruent to triangle ABC, therefore AB is equal to DC, BC is equal to DA, क्योंकि CPCT मतलब दो ट्राइंगल अगर कंग्रुएंट है तो उसके बाकी के पार्ट्स भी सेम होते हैं। therefore this is AB equal to DC and BC equal to DA. Over. If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it's a parallelogram. Given, इस बार पैरेललोग्राम ने क्वाड्रिलैटरल ABCD दिया एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू CD
BC is equal to DA. To prove quadrilateral ABCD is parallelogram. Proof. To prove parallelogram, I have to show Z formation. और Z फॉर्मेशन के लिए पैरेलल दिखाना पड़ेगा, और पैरेलल दिखाने के लिए नहीं, उल्टा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पैरेलल लाइंस दिखानी पड़ेगी। पैरेलल लाइंस के लिए Z फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, और Z फॉर्मेशन के लिए SSS पैरेलल, अरे पहले SSS फिर CPCT और फिर पैरेलल प्रूव हो जाएगा। लेट्स टेक आउट द टू ट्राइंगल्स एंड कंपेयर। ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABC। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल दिया हुआ है। AB is equal to CD. AB is equal to CD given. BC is equal to DA. BC DA given. And last, common arm AC. AC is equal to AC, common arm. Therefore, SSS theorem के मुताबिक triangle ADC is congruent to triangle ABC. Therefore, तो दो ट्राइंगल को congruent प्रूव किया। क्यों? ताकि पहले ट्राइंगल का एंगल C डबल डैश के सामने और दूसरे का डबल डैश के सामने एंगल A को मैं सेम बता सकूं। सो देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू CAB। CPCT, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके बाकी के बचे हुए एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। बट these are alternate interior angles। ये जो दो एंगल सेम है वो Z फॉर्मेशन वाला एंगल्स है। Therefore, AB parallel to DC। Similarly, D, बाकी के दो एंगल सेम दिखाओ। ट्राइंगल्स तो सेम प्रूव हो चुके हैं, तो ट्रिपल डैश के सामने वाला एंगल नहीं, ये नीचे का एंगल है। दिस एंगल is equal to this angle. There is also Z formation which you have to write down. Similarly, angle DAC is equal to BCA CPCT. Therefore, AD पैरेलल टू BC, क्योंकि दो एंगल सेम तो Z फॉर्मेशन हो रहा है, और Z फॉर्मेशन का मतलब है पैरेलल। हेंस फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बट ये 1 and 2 है कौन?
AB parallel to DC and AD parallel to BC are enough to prove it as a parallelogram. Look at how theorem 8.3 is given in textbook. Textbook does not have proper theorems in it because that's how your textbook is. हर जगह why, what do you think ऐसे नहीं लिख सकते. So again I am going through theorem 8.3 कि अगर आमने सामने की साइड सेम है तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है ऐसा प्रूव करो. तो AB इक्वल टू DC, BC equal to AD. This is given. तो कैन आई से SSS थियरम के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दोनों ट्राइंगल के पास रेड साइड, ब्लू साइड और पिंक साइड है. तो अगर SSS के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये देखो SSS, तो ये क्रॉस एंगल सेम है. और अगर क्रॉस एंगल सेम है, if this cross angle are same, then there is Z formation, therefore AD parallel to BC प्रूव हो गया. सिमिलरली डॉट एंगल सेम है CPCT और डॉट एंगल सेम है तो AB parallel to DC हो गया. And therefore AB parallel to DC, BC parallel to DA, therefore it is parallelogram. यहां पे भी एग्जैक्टली वही किया था. AB parallel to DC, AD parallel to BC, from 1 and 2 it's a parallelogram. In parallelogram opposite sides are equal. अब ये उल्टा सम हो गया. इट्स ऑलरेडी गिवन के पैरेललोग्राम है. गिवन पैरेललोग्राम ABCD. टू प्रूव opposite sides are equal, मतलब AB is equal to CD and AD is equal to BC प्रूव करना है. प्रूफ. अब प्रूफ के लिए दिस इज द स्ट्रैटेजी. देखो 1 is equal to 2 alternate angles, 3 is equal to 4 alternate angles. Add it, you will find that opposite angles are same. Sorry, my mistake. Opposite sides are equal नहीं, opposite angles are equal प्रूव करना है. तो parallelogram is given, we have to prove angle A and C are same and angle B and D are same. Proof. Draw diagonal AC. और गिवन पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकता हूं AB पैरेलल टू DC, AC ट्रांसवर्सल, therefore एंगल BAC is equal to एंगल DCA. मतलब 3 is equal to 4. फिर मैं स्टैंडिंग लाइंस को पैरेलल दिखा सकता हूं. AD इज पैरेलल टू BC, AC ट्रांसवर्सल, therefore एंगल DAC इज इक्वल टू BCA. मतलब 1 is equal to 2. You can literally write 1 2 if you want to. उससे इजी हो जाता है सम. एड बोथ, तो 3 + 1 and 4 + 2 हो जाता है. 3 + 1 मीन्स एंगल BAC plus CAD and 4 + 2 is DCA plus ACB. पूरा एंगल A, पूरा एंगल C. Hence proved opposite angles are equal.
बट बी और डी भी इक्वल हो सकते हैं. दैट यू सिंपली राइट सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव. Similarly, we can B is equal to D. दो में से कोई एक ही करना है. If in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it's a parallelogram. ये उल्टा थियरम हो गया उसका. Given quadrilateral ABCD जिसमें एंगल A is equal to C, मतलब 1 is equal to 3 and angle B is equal to angle D, 2 is equal to 4. To prove ABCD quadrilateral is a parallelogram. Proof. ये देखो क्या लिखा है. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 360. तो quadrilateral ABCD, therefore angle A plus B plus C plus D is 360. बट ए और सी तो सेम है, तो एंगल सी. बी और डी सेम है, तो बी की जगह मैं डी लिख सकता हूं प्लस सी प्लस डी. सो ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, तो मैंने ए को सी बना दिया, बी को डी, तो सी सी 2C प्लस डी डी 2D, और वो 2 कॉमन निकल के सामने जाएगा, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 मिलेगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सी प्लस डी 180 का मतलब क्या है, मैं रेड कलर से समझाता हूं. दैट इन अ पैरेललोग्राम, अरे इन अ क्वाड्रिलैटरल, इफ सी एंड डी का टोटल 180 है, तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये सी फॉर्मेशन है और ये पैरेलल लाइंस है. सो सी प्लस डी 180 एज पर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रूल, AD पैरेलल टू BC. एक सब्सटीट्यूशन करने से AD पैरेलल टू BC हो गया. Similarly, AB parallel to CD and therefore it is a parallelogram, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे पैरेलल हो गया. बट सिमिलरली की जगह पूरा लिखना है वापस, तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर से एक बार, A प्लस B प्लस C प्लस D इज 360. बट A ठीक है, एंगल B तो D है और एंगल C तो A है, तो A और D का कैलकुलेशन बना दिया. 2A प्लस 2D इज इक्वल टू 360. 2 कॉमन एंड गेट्स डिवाइडेड, एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180. एंड एंगल A प्लस D 180 का मतलब है प्रॉपर C फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. और अगर वो सच में 180 है टोटल, देन दीज लाइंस आर पैरेलल. यू हैव टू फिनिश इट प्रॉपरली राइटिंग इट. हेंस प्रूव्ड इट इज अ पैरेललोग्राम. The diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. ये प्रूव करना है. कैसे?
ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। सो गिवन पैरेललोग्राम ABCD, टू प्रूव diagonal bisect each other। अब इसका मतलब क्या होता है? To diagonal bisect each other means we have to show that O is the midpoint of AC. And we also have to show O is midpoint of BD। और O को AC और BD का मिड पॉइंट दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? वी विल हैव टू शो AO is equal to OC and BO is equal to OD। दिस इज आवर मेन टू प्रूव। और AO OC BO OD सेम बताने के लिए the triangles which we are going to choose is this। It's triangle AOD and COB। ध्यान से देखो, गिवन में पैरेललोग्राम गिवन है, तो जब एक पैरेललोग्राम होता है तो लाइंस आर पैरेलल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर क्रिएटेड। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कैन आई से AD एंड BC आर पैरेलल और BD ट्रांसवर्सल? सो नंबर 1, AD पैरेलल टू BC, DB transversal, therefore the green angle ADO is equal to CBO। तो ये ग्रीन एंगल Z फॉर्मेशन की वजह से आ गया और इसलिए ये दोनों सेम है। सेकेंडली, पैरेललोग्राम है तो DC एंड AB आर ऑल्सो पैरेलल एंड AC acts as a ट्रांसवर्सल। नहीं, लेकिन ये नहीं लेते। इसमें DB ट्रांसवर्सल था। सेकेंड टाइम आई एम टेकिंग सेम AD पैरेलल टू BC, बट माई ट्रांसवर्सल इज नाउ AC। नाउ व्हाट विल हैपन? सी, Z फॉर्मेशन अभी भी होगा, द टू रेड लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम निकले। नीचे का एंगल इक्वल टू ये एंगल। सो AD पैरेलल टू BC, AC ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO। That's second, you see triangle। एक और कंपैरिजन बाकी है और वो कंपैरिजन होगी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AD इज इक्वल टू BC। So 1, 2, 3, we prove that the two triangles are congruent according to ASA criteria। और ASA के हिसाब से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या? CPCT। Therefore रेड के सामने वाला और ये रेड के सामने वाला पार्ट सेम है, मतलब BO OD सेम। Therefore BO is equal to OD CPCT।
therefore O is midpoint of BD. दूसरी तरफ ये OA और ये OC भी सेम है, सो AO इज इक्वल टू OC CPCT, therefore O is midpoint of AC. तो अगर BD का मिड O, AC का मिड पॉइंट भी हो, therefore AC BD bisect each other, therefore AC and BD bisect each other. ये रहा टू प्रूफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. Theorem 8.7. If the diagonals of quadrilateral bisect each other, then it's a parallelogram. Given quadrilateral ABCD, whose diagonal bisect each other, मतलब AC bisect BD, मतलब O is midpoint of AC and O is midpoint of BD, मतलब AO is equal to OC and BO is equal to OD. This is given. So I'm highlighting here AO, OC, BO, OD. और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम. तो कैंट यू सी that according to SAS theorem, the two triangles are congruent. So this triangle and this triangle are congruent, side, angle, side. तो क्या? तो ये कि CPCT के हिसाब से एंगल 1 एंड 2 आर सेम. डैश के सामने वाला एंगल, डैश के सामने वाला एंगल सेम CPCT. ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली थर्ड एंगल 3 इज इक्वल टू फोर्थ एंगल 4. ब्लू एंगल इज इक्वल टू ब्लू एंगल. Therefore, और ब्लैक के सामने वाली साइड और ये सामने वाली साइड भी कॉन्ग्रुएंट. तो 1 इज इक्वल टू 2, 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोलने से क्या प्रूव होता है? Z. और Z प्रूव करने से वी कैन राइट AB पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD. And yeah, so this is these two triangles AB parallel to CD. Similarly, we can prove AD parallel to BC. Therefore, ABCD is a parallelogram. Final answer.
ये रहा टेक्सचुअल कंपेयरिंग द टू ट्राइंगल्स SAS के हिसाब से एंड AB parallel to CD. Similarly, BC parallel to ED, and therefore it's a parallelogram. Example 1. Show that each angle of rectangle is right angle. ये बाय हार्ट करो कॉन्सेप्ट कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90. सो शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल. तो हम क्या कहते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90, क्योंकि रेक्टेंगल का एटलीस्ट एक एंगल 90 होता. लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90. नाउ कैन आई से दैट angle A plus B is equal to 180 because AD parallel to BC, AB transversal, interior angles on same side of transversal. तो C फॉर्मेशन हो रहा है और A तो 90 है, therefore angle B is equal to 90. तो A 90 तो B भी 90. Also angle A is equal to C, therefore angle C 90. क्यों? Opposite angles of parallelogram are same. तो A 90 तो C भी 90. Also angle B is equal to angle D, therefore angle D is equal to 90, opposite angles of parallelogram. Therefore angle A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90. सम ओवर. प्रूव कर दिया कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते. शो दैट डायगोनल ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग सम. गिवन rhombus ABCD, to prove diagonals are perpendicular to each other. मतलब AC perpendicular to BD, मतलब एंगल O 90 दिखाना. और प्रूफ के लिए यू हैव टू कंपेयर द ब्लू ट्राइंगल एंड द रेड ट्राइंगल. rhombus has all sides same, तो AD and DC are same. AD is equal to DC, sides of the rhombus are same. DC DC कॉमन आर्म दोनों ट्राइंगल में है, एंड OA is equal to OC. Because rhombus में diagonals bisect each other, तो O is the midpoint of AC. SSS theorem लागू हो गई. Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD according to SSS theorem. तो क्या, तो ये कि SSS के हिसाब से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो डबल डैश के सामने वाला एंगल
और डबल डैश के सामने वाला एंगल सेम है, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ऑल्सो एओडी और सीओडी का टोटल 180 होता है क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो एओडी सीओडी सेम और एओडी सीओडी का टोटल 180, तो बेसिक मैथ्स हमको ये कहता है देयरफॉर एंगल एओडी इज इक्वल टू सीओडी इज इक्वल टू 90। देयरफॉर एंगल ओ इज 90, देयरफॉर एसी इज परपेंडिकुलर टू BD। Example 3. ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC. Triangle ABC isosceles है, तो दो साइड सेम। अब अगर दो साइड सेम तो दोनों ऑपोजिट एंगल सेम, x x। if the two interior angles are x तो exterior angle is 2x, and if the exterior angle is 2x और अगर उसको बाइसेक्ट करोगे, AD bisects the exterior angle, again it divides into x। इसका मतलब एक Z फॉर्मेशन दिख रहा है somewhere here, this is x, this is also x, मतलब D A C और A C B या B C A दोनों सेम है। पहला प्रूव दैट तो यही प्रूव हो गया। एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है, वो भी प्रूव हो जाएगा 2 मिनट में। कैसे? पैरेलल एंड इक्वल। विल वरी अबाउट पैरेललोग्राम प्रूफ लेटर, पहले डीएसी बीसीए का प्रूफ लिखते हैं। देखो, नंबर 1, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, देयरफॉर ए बी के सामने एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर x is equal to x, therefore angle PAC is equal to angle ACB plus ABC। ये कौन सा फॉर्मूला है? ट्राइंगल्स चैप्टर में था that exterior angle is equal to interior opposite plus interior opposite, therefore angle PAC is equal to 2x। लेकिन AD उसको बाइसेक्ट करता है, AD bisects angle PAC, therefore angle DAC is x। तो एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि ACB x है, दूसरी तरफ DAC x है, therefore angle ACB is equal to angle DAC। ये पहला प्रूफ हो गया। और अगर ये दो सेम है, therefore alternate interior angle rule, therefore तो Z फॉर्मेशन के दो एंगल सेम है, तो कैन आई से that AD and BC are parallel to each other? Yes. Therefore, AD parallel to BC.
और साथ में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एंड ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव हो गया। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए लिटरली ब्लैक कलर का एक छोटा सा सेंटेंस इतना सा लिखना है, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी के लिए ये एक्स एक्स सेम दिखाना है। Fourth example, two parallel lines L and M are intersected by transversal P. Show that quadrilateral formed by bisector of interior angles is a rectangle. कहना क्या चाहते हैं? L M parallel intersected by P. L M P bisector of interior angles। तो इंटीरियर एंगल ये है रेड कलर का, और ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, और ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसे आएगा, एक दो। और बाकी के दो इंटीरियर एंगल्स ये है ब्लू कलर के, ये और ये उसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर थोड़े से बड़े करोगे तो पता चलेगा दैट दे कट ईच अदर and becomes a rectangle, and that's what we have to prove. And how we have to prove it? It is quite simple. Let this angle be 2x. तो अगर ये 2x है तो ये x x है, और z फॉर्मेशन के हिसाब से अगर ये 2x है तो ये भी 2x है, बिकॉज L पैरेलल टू M, और उसका बाइसेक्टर तो एक्स एक्स। सिमिलरली लेट दिस टू बी 2y, तो ये भी 2y एंड y बिकॉज इट्स बाइसेक्टेड। कैन यू सी अ स्ट्रेट लाइन एंड अ ब्रांच in case of line L, where this is 2x, this is 2y? तो can I say 2x plus 2y is equal to 180 linear pair? Yes. मतलब x plus y is equal to 90? Yes, क्योंकि 2 कॉमन सामने डिवाइड। x plus y 90, तो जो रेड लाइन और ब्लू लाइन है उसके बीच में 90 बन गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, एंड इफ these two are 90 90, the other two can also be 90 90, and so on and so forth we prove. So let us do this sum in detail now, that how will we prove that quadrilateral formed by bisector is a rectangle। मतलब प्रिसाइसली बोलूं तो ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव? गिवन L पैरेलल टू M, P ट्रांसवर्सल। टू प्रूव ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। प्रूफ L पैरेलल टू M, T ट्रांसवर्सल, P ट्रांसवर्सल, T नहीं, P ट्रांसवर्सल। Therefore, can I say angle PAC is equal to ACR? मतलब ये पूरा
और ये पूरा सेम। तो हाफ लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ पीएसी इज हाफ ऑफ एसीआर। बट व्हाट इज हाफ ऑफ पीएसी? पीएसी का आधा ये एंगल है बीएसी, और एसीआर का आधा एसीडी। तो बीएसी और एसीडी सेम का मतलब ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन बी ए सी डी। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव हो जाता है इससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। दिस इज वन। सिमिलरली ये 2i, ये भी 2i, मतलब एस ए सी, एंगल एस ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। मतलब हाफ ऑफ एस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी क्यू। मतलब डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, और डी ए सी बी सेम, तो डी ए सी बी जेड फॉर्मेशन हो जाता, समथिंग लाइक दिस, डी ए सी बी। I can say BC parallel to AD. Therefore, from this and this, we can say parallelogram ABCD. अब तक रेक्टेंगल प्रूव नहीं हुआ है, parallelogram ABCD. Now I have to prove that it is a rectangle. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, it's very shabby diagram I know, but you will have to visualize somehow that this is a parallel line, this is a parallel line, this is a transversal. So this plus this is 180. तो 2x plus 2y is 180. Interior angle on same side of transversal. 2 कॉमन निकाल के सामने डिवाइड करोगे तो x plus y 90 हो गया. Therefore this angle and this angle total is 90. And I think this is enough. X plus y 90 हो गया, तो therefore BCD is 90. एंगल BCD वो x plus y ही है, और पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 है इज अ रेक्टेंगल। वो एक सेंटेंस तुम्हें बाय हार्ट करने को बोला था, ये रहा एग्जाम्पल 1 में, कि पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 है वो रेक्टेंगल है, तो एक एंगल 90 यहां पे दिखा दिया मैंने, देयरफॉर इट्स अ रेक्टेंगल प्रूव। Example 5, show that bisectors of angles of parallelogram forms a rectangle. तो parallelogram is given parallelogram ABCD, और उसके हर एक एंगल का बाइसेक्टर है which is also given. To prove हर एक एंगल का बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता है, सो वी हैव टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल, और ये पूरा सम का वजन सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को 90 बताने के पीछे है। हम जी जान लगा देंगे, एंगल S को 90 दिखाएंगे,
वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, और वो प्रूव करने के लिए एस को 90 दिखाएंगे। एस को 90 दिखाने के लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को 90 दिखाएंगे। 90 के सामने 90, और इसको 90 दिखाने के लिए ये एंगल x और ये एंगल y का टोटल 90 है वो दिखाएंगे। दैट मीन्स वी विल बी डीलिंग विथ दिस ट्राइंगल। तो ये फिगर मन में फिक्स कर लो एंड इट्स गोइंग टू बी एन इजी सम। लुक एट द स्ट्रेटेजी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देयरफॉर ABCD पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल A इज 180, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये फैक्ट है। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो एंगल D प्लस A इज 180। तो कैन आई से हाफ ऑफ D प्लस हाफ ऑफ A इज हाफ ऑफ 180। तीनों में हाफ लगा दिया, विच इज अलाउड। अब हाफ ऑफ D मतलब एंगल SDA, हाफ ऑफ एंगल A DAS इज इक्वल टू 90। अब SDA प्लस DAS 90 तक लेके आए, तो इन ट्राइंगल नेक्स्ट फेज, इन ट्राइंगल DAS SDA DAS ASD 180, जिसमें से SDA DAS तो 90 है। देयरफॉर एंगल ASD 90, यहां तक आ गए, ASD 90, देयरफॉर PSR 90, देयरफॉर PSR also 90, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और जैसे ये PSR 90 प्रूव हो गया, सिमिलरली वी कैन प्रूव P90, Q90 एंड R90, ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देना और कुछ नहीं। सिमिलरली वी कैन प्रूव P R Q90, therefore if all angles are 90, quadrilateral PQRS is a rectangle. सम ओवर। तो बहुत ही इजी सम है, समझ के करोगे तो खुद लिख सकते हो, और मैंने स्ट्रैटेजी पहले ही समझा दी थी। इट्स ऑल अबाउट प्रूविंग वन एंगल 90। थियरम 8.8, a quadrilateral is a parallelogram if pair of opposite sides are equal and parallel। एक क्वाड्रिलैटरल में सामने की दो साइड सेम है और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव करो। SAS दिखाना है एंड AD इक्वल टू BC दिखाना है, CPCT करके। सो लेट्स सी। गिवन AB is equal to CD, AB parallel to CD, to prove parallelogram ABCD। प्रूफ। अब AB पैरेलल टू CD अगर है, AB पैरेलल टू CD है, तो AC कैन एक्ट एज ट्रांसवर्सल, and if AC is transversal, angle DCA is equal to angle CAB, which I am highlighting in blue here। ये एंगल
ब्लू नहीं लेते, ग्रीन लेते हैं। ये ग्रीन एंगल इज इक्वल टू ये ग्रीन एंगल। फिर DC इज इक्वल टू AB, वो तो है ही गिवन, एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन आर्म। तो बातों बातों में हमने SAS थियरम लगा ली। साइड एंगल साइड के हिसाब से द रेड एंड द ब्लू ट्राइंगल हैव बिकम कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल DAC is congruent to triangle BAC। तो क्या, तो ये कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से AD इज इक्वल टू BC? यस, आई कैन से AD इज इक्वल टू BC। CPCT। लेकिन उसकी जगह कैन आई से दिस एंगल, दिस रेड एंगल एंड दिस रेड एंगल आर सेम? यस, वो भी कह सकते हैं CPCT दैट दिस रेड एंगल इज इक्वल टू दिस रेड एंगल। तो वो कौन सा एंगल है, लिखो। रेड एंगल इज एंगल DAC इज इक्वल टू ACB, CPCT। बट अगर ये दो एंगल सेम है तो ये तो Z फॉर्मेशन हो गया। तो टू रेड एंगल्स आर क्रिएटिंग अ Z। देयरफॉर आई कैन से AD पैरेलल टू BC बिकॉज Z हुआ। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC हमने प्रूव किया and AB parallel to CD is given, hence proved that it is parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों पैर पैरेलल होनी चाहिए। सम ओवर। तो याद रखना, कोई भी आमने सामने की दो साइड सेम और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है, उसका ये प्रूफ। और ये बाय हार्ट भी कर लेना, दैट्स व्हाई अ बिग ब्लैक बॉक्स इज क्रिएटेड। सो यू रिमेंबर दिस इज द सेकेंड थिंग टू बाय हार्ट इन टुडेज लेक्चर। And the last sum of the day, ABCD is parallelogram in which P and Q are midpoints of the opposite side AB and CD। ABCD parallelogram है, ओके, AB C C D D A। ABCD is parallelogram, P and Q are midpoint of AB and CD। तो PAB का midpoint है तो AP PB सेम, और Q midpoint है तो ये दो सेम, और पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड तो सेम है ही। If AQ intersect DP at S, AQ intersects DP at S and BQ at CP at R, BQ intersects CP at R, show that। अब सबसे पहला show that है, प्रूव करो APCQ पैरेललोग्राम है। तो गिवन एक ही है, पैरेललोग्राम ABCD, और प्रूव करना है पहला APCQ। टू प्रूव पैरेललोग्राम APCQ। अब देखो कैसे। पैरेललोग्राम ABCD, therefore
AB parallel to CD. Therefore 2AP parallel to 2QC. रीजन क्या है, ये क्या है, AB 2AP कैसे बन गया? बिकॉज P एंड Q आर मिड पॉइंट्स. तो P एंड Q अगर मिड पॉइंट है तो AB 2AP हो सकता है. AB इज इक्वल टू 2AP, 2PB भी हो सकता है. 2 कट, देयरफॉर AP पैरेलल टू QC. ये हो गया फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, AB इज पैरेललोग्राम ABCD की वजह से AB इज इक्वल टू CD. बट AB मतलब 2AP, CD मतलब 2QC. 2 कट, AP इज इक्वल टू QC 2. तो एक तरफ AP इज पैरेलल टू QC, दूसरी तरफ AP इज इक्वल टू QC. Therefore, as per theorem 8.8, APCQ is parallelogram. Sum over. थियरम 8.8 क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलैटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है. इक्वल एंड पैरेलल, जय हो. वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है. सेकेंड, DPBQ. DPBQ, something like this. तो वही, इट्स वेरी सिमिलर. पैरेललोग्राम ABCD का मतलब है AB पैरेलल टू CD. बट AB के अंदर PB है और CD के अंदर DQ. सो PB पैरेलल टू DQ, ये एक हो गया. दूसरा, पैरेललोग्राम ABCD की वजह से आई कैन राइट AB इज इक्वल टू CD. बट AB I can write it as 2PB and CD is 2DQ. 2 cut, PB is equal to DQ. From 1 and 2 and theorem 8.8 we can say that DPBQ is a parallelogram. और PSQR, अब ये यूनिक लग रहा है कि PSQR कैसे पैरेललोग्राम हो गया, वो देखो. वी हैव प्रूव्ड 2 थिंग्स एज पैरेललोग्राम. पहली वाली मैंने ड्रॉ नहीं की थी. इट वॉज APCQ. A P C Q. एक तरफ APCQ पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, एक तरफ DPBQ हो चुका है. बेस्ड ऑन दैट कैन आई से APCQ में AQ के अंदर QS आता है, QS, और PC के अंदर PR आता है. तो AQPC अगर पैरेलल है तो QSPR पैरेलल है. फिर ये पैरेललोग्राम में दिस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर दीज टू आर पैरेलल. तो QB के अंदर QR आता है और DP के अंदर SP आता है. दैट्स माई स्ट्रेटेजी. देखो मैं क्या लिख रहा हूं. अब पहले लेफ्ट साइड
APCQ is parallelogram. Therefore, AQ is parallel to PC, तो QS parallel to PR 1. इस पैरेललोग्राम में ये दो पैरेलल, तो उसके टुकड़े भी पैरेलल है. फिर दूसरा DPBQ is parallelogram. Therefore, DPQB parallel. DP parallel to BQ. और DP का काम का टुकड़ा PS, BQ का काम का टुकड़ा QR. तो मैंने क्या डिराइव किया, देखो यहां पे ध्यान से. QS parallel to PR, QS parallel to PR, PS parallel to QR, PS parallel to QR. These two together are enough to prove parallelogram PSQR, or whatever the name is given. हाँ, PSQR parallelogram बन गया. So this is the end of session 1, where we have done theorems up to 8.8 and 6 examples, total 14, plus क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, वैसा एक सम था. और प्लस एक और था स्टार्टिंग में, विच वॉज हैंग हो या हैंग. Close the program. That's all right. Luckily we had just finished. I'm opening it again. So 8 theorems, 6 examples, sum of all the angles is 360, and properties of course. तो properties हमने की थी, याद रखने के लिए ये चार्ट किया था. तो इतनी चीजें तुमको पक्के से आ जानी चाहिए. Now I understand I had told you how to write the homework, but I am changing it slightly. First time you write from the video. You write from video. Basically you write with me. But second time you write from a PDF which I am going to send you, and try to understand that. और PDF might be slightly different from my video, तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी. So one time you will write all the sums from the video with me, and second time you will copy it from the PDF which I am going to send you today night. Thank you.